Good morning, my dear students. Welcome back to our English class. I hope you all are doing fine and safe at home. So, dear students, in the previous video, we have started very important topic that was tenses. So, in that video, we have discussed about the introduction and the actual meaning and the main parts of tenses, right? So, I am back again with another video of tenses. In this video, we will be talking about the first part of our tenses, first tense, that is the present tense. So be ready to understand. I hope rest of the previous topic is clear to you. I will explain the entire concept of present tense, how to use, where to use, the usage, the rules, everything. So to understand this topic, must watch the complete video. And before I go with, I just need to clear one more thing. Before understanding this topic, students, do watch the previous video of tenses because that is the base and introductory part of the tenses, right? So I will mention the link of the previous video in the description box. Do watch that video and after that do watch this part because these two parts are interlinked. Without watching the base part, without watching the introductory, you will not able to understand this. Okay, so let's just start. So before I start with the present tense, let's just recall with the tense part. Okay, so before I start present tense, let's just have the meaning of tenses first. So मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था tenses क्या है? Tenses basically is equal to time. तो time कैसे? Any form of verb or a verb that expresses the time of an action. तो tenses कैसे work करते हैं? Any form or any verb, ठीक है? Any form of verb or any verb जो कि यूज की जाती है टू एक्सप्रेस कि हमारा एक्शन कौन से टाइम पे हो रहा है, ठीक है? अभी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, तो अभी मेरा एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है? तो मेरा एक्शन क्या है? स्पीकिंग, ठीक है? तो हो कब रहा है? प्रेजेंट में. सो दिस इज हाउ द टेंसेस वर्क, right? So let's just start with the present tense. Dear students, before I start with the detailing, हम इसका पहले meaning इसका भी समझेंगे because without meaning, without introduction, without definition आपको नहीं समझ आएगा. Okay? Okay, let's just start. So the introduction with the present tense. What are present tense basically? So present tense, in the present tense we talk about or describe about the event. तो हम present tense में क्या करते हैं? We usually talk or describe about the event. Event means कुछ भी जो action हो रहा है, ठीक है? Event कोई भी काम हो रहा है उसमें जो actions हैं. To talk or describe, कोई भी चीज को describe करना है जो event हो रहा है in the real time or the करंट मोमेंट. तो जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे है? रियल टाइम. रियल टाइम मींस प्रेजेंट टाइम, करंट मोमेंट, ठीक है? रियल टाइम एंड करंट मोमेंट आर द सेम थिंग. तो जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट वी विल टॉक इन द रियल टाइम. सो दैट इज व्हाट द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इटसेल्फ सेज कि आज का टाइम, ठीक है? अभी का टाइम, present moment where we are living. We do not know what will happen in future and the past is already gone. ठीक है? So the moment in which we are living, that is what we call present tense. So we will talk about the actions or the event that happens in the real time. Okay? So this was all about the introduction of the present tense. Let's just move to the detailing part. Students, हमने ना चीज की थी पिछली वीडियो में that tenses is basically dependent or basically defined on the basis of two components. ठीक है? पहला तो था टाइम. टाइम में हमारे आते थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सेकंड था हमारा एस्पेक्ट कि कौन से पर्सपेक्टिव से और किस बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास फोर एस्पेक्ट थे. सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये मेन चार पार्ट्स थे जिसके बेस पे हमने टेंसेस को समझना है, ठीक है? उन चार पार्ट्स को देखो, टाइम प्लस एस्पेक्ट मेक्स द टेंसेस, ठीक है? टाइम when it combines with the aspects it will make the entire tenses, जो 12 tenses के पार्ट, right? तो अभी हम यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे. In the present tense we have combined the four aspects with the present, with the time. ये time है present और ये aspect है, ये चार aspects है. In the same manner we will combine it with the past, we will combine it with the future, right? So let's just start. So in the present tense there are four parts. Present tense में क्या है? Four parts. कौन कौन से? Present indefinite, present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. ठीक है? These are the four parts. Basically present indefinite tense को हम simple tense भी कह देते हैं, ठीक है? जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. Don't get confused in these two. This is the technical term. हम इसको simple tense भी कहते हैं, right? Present indefinite tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. So let's just start with the first tense, present indefinite. इसका भी हम पहले मीनिंग करेंगे, उसके साथ इसका रूल करेंगे एंड देन वी विल गो विद द यूजेज, देन एग्जांपल्स,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, वी आर नॉट इन हरी, आराम से सुनना है, आराम से समझना है, एंड देन जस्ट गो ऑन विद द प्रैक्टिस, राइट। विदाउट प्रैक्टिस इसको समझ नहीं पाओगे, समझ इसको सुनने के बाद गो विद द प्रैक्टिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डे बाय डे एंड ग्रेजुअली यू विल गेट परफेक्ट इन दिस। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने सीधी सी बात की थी सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस सिंपल टेंस। मैंने एक सीधी सी बात की थी कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, यहाँ पे सिंपल टेंस होगा, इंडेफिनिट टेंस है, उसमें ना तो बताया जाता कि एक्शन हो रहा है या हो गया है, एक्शन की स्टेप वो नहीं बताई जाती कि कौन सी फॉर्म में है, दे जस्ट टॉक अबाउट द एक्शन की एक्शन है, ठीक है, या तो वो करंट मूवमेंट में है या पहले था या होने वाला है, राइट। हम ये नहीं बात करते कि वो किस सिचुएशन में है। एंड नेक्स्ट, we do not know that what is the actual situation and actual happening, right? Okay, तो in the present indefinite, firstly let's just go with the rules, ठीक है, रूल्स को समझते हैं पहले कि इसमें हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि ये प्रेजेंट टेंस है, आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है, राइट। सो इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये मैंने जो रूल लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये आपको इसी सीक्वेंस में ही फॉलो करना है, ठीक है, मींस ये सेंटेंस फॉर्मेशन इसकी इसी सीक्वेंस में होगी, आप इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। दिस इज द एक्चुअल सीक्वेंस, दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल टेंस, इसी से प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस फॉर्म होगा। ओके, सो फर्स्टली ऑलवेज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस द डूअर, जो एक्शन करता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है, सब्जेक्ट भी ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ठीक है, ये एस क्या है? दिस मेक्स द डिफरेंस इन द प्रेजेंट टेंस, दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स यूजली गेट कंफ्यूज्ड इन डू डज, हमें वर्ब के साथ एस लगाना है नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले आपको इसको समझने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, जो भी हमारे होते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली वी यूज, या तो हम सीधा नेम यूज करते हैं, राइट, या तो हम ही शी इट यूज करते हैं, वी यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज सब्जेक्ट्स मेक्स द डिफरेंस। अभी वो कैसे, देखो अभी मैं बोल लूं दैट आई ईट, मैं पहले सब्जेक्ट से बात कर रही हूँ आई, ठीक है, मैंने खाया, आई ईट, बट अगर मैं बोलूं तुमने भी खाया या उसने भी खाया, ठीक है, आई ईट, ही ईट्स, मैंने बोला आई ईट बट ही ईट्स, तो क्या डिफरेंस है? देखो मैंने आई भी यूज किया है, ही भी यूज किया है, ठीक है, वर्ब मेरी सेम है ईट, बट मैंने इसके साथ एस लगा दिया, इसके साथ नहीं लगाया, क्या डिफरेंस है बच्चों? दिस इज द डिफरेंस। एक तो होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, रूट फॉर्म, जो वर्ब की, जो एक्शन की रूट फॉर्म है, वो हम हमेशा प्रेजेंट में ही यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस, हमेशा एस नहीं आएगा, इट इज कंडीशनल। कंडीशनल कैसे? जब तो हमारे जो सब्जेक्ट है, जो हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर या वो है ही, शी, इट और किसी का डायरेक्ट नेम, मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही हम एस लगाते हैं जब वर्ब लगाते हैं, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आई लगाया था, या फिर मैं वी लगा दूं, राइट, वी लगा दूं और आई लगा दूं, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, बट इफ आई गो विद ही और शी, इट विल फॉलोड विद एस, राइट। कैसे? देखो आई ईट, आई मैंने ईट के साथ यूज किया बट ही ईट्स, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब भी कोई डायरेक्ट नेम लगा रहे हो, ही शी इट, इट क्या होता है, नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं हम, है ना, नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं, या फिर एनिमल्स के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, या किसी चीज के लिए, ठीक है, तो वहां पे हम इट यूज करते हैं, राइट। सो देयर वी विल फॉलो विद एस। देखो चलो लेट मी क्लियर यू द थर्ड पर्सन की व्हाट आर थर्ड, कौन है थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, जो हम है, आई और वी, ठीक है, सेकंड पर्सन आप, यू, ठीक है, थर्ड पर्सन मींस कि उसके बाद तीसरा पर्सन, तीसरा इंसान, ठीक है, इट कैन बी ही, शी, इट, दे, हिम, ठीक है, दीज आर द थर्ड पर्सन। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन से, अगर हम डायरेक्टली नेम यूज कर रहे हैं तो वो सीधा नाउन हो गया, बट इफ वी आर यूजिंग ही, शी, इट एट द प्लेस, they become pronoun. So these are all personal pronouns, है ना, third person singular person subject. तो he, she, it है जो, these are the third person singular. अभी हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, s and es,
ठीक है, अभी मैंने बोला था अगर मैं बोलूं आई ईट, या फिर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल और लेती हूँ, मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पर्सन यूज किया है, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे मैंने एस नहीं यूज किया, बट इफ आई गो विद ही प्लेज क्रिकेट, तो ही इज द थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस थर्ड पर्सन है, तीसरे पर्सन की बात हो रही है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ही प्लेज, तो मैंने यहाँ पे प्लेस क्यों यूज किया है, बिकॉज ऑफ ही, कि उसकी प्लेस चेंज होगी, ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट और ही प्लेज क्रिकेट, और ठीक है, शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, ठीक है, सो दिस मेक्स द डिफरेंस। सो दी लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट फर्स्ट। अगर तो आपके पास सब्जेक्ट है ही, शी और इट, और किसी का डायरेक्टली नेम, ठीक है, फिर तो आप लगाओगे वर्ब के साथ एस, अदरवाइज और किसी सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगेगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ओनली दीज वर्ड आर द सब्जेक्ट जिसके साथ वर्ब के साथ एस फॉलो होता है। एस मींस अगर तो गो है, ठीक है, तो हम गोज बना देंगे, GOES, राइट, बट अगर वॉक है तो WALKS लगेगा वॉक के साथ, ठीक है, दिस मेक्स द डिफरेंस, दिस जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेलिंग्स, राइट, ओके, सो दीज आर द प्रोनाउंस और दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट followed SES, otherwise rest of the subjects जो रह गए I, we, they, you, इनके साथ SES हम नहीं लगाते, right? So okay, ये तो हो गए हमारे subjects and the usage of and the actual formation of the rule. Let's just go to usage कि हम इसको use कहाँ पे करते हैं, जो present indefinite का वो कहाँ पे use होता है, right? पहले present indefinite को identify और use करने के लिए basically we use with the routine habits और एनी स्टफ जो हम रेगुलरली करते हैं, जो हमारी हैबिट है, ठीक है, जैसे आई गो टू वॉक डेली, तो ये प्रेजेंट टेंस है ना, आई गो टू वॉक, आई सब्जेक्ट, गो वॉक, टू वॉक क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। सेकंड, जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो जनरली ट्रूथ है, जो हमें पता है कि ये फैक्ट है, बेसिकली हम इसको फैक्ट भी कह देते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ जो चेंज नहीं हो सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ हम क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके आते हैं, देखो जो चीज है वो भी हो भी रही है एट द मोमेंट, वो हो भी चुकी है और वो होगी भी, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं, उसका हम सिचुएशन या उसकी हैपनिंग डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी कंडीशन या उसका एक्चुअल टाइम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो सारा यूनिवर्सल ट्रूथ तो हर टाइम ट्रू है ना, वो तो रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लान्ड एक्शंस और टू हैपन इन फ्यूचर, कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी वर्ब जो हमारे फ्यूचर में होने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूज हेडलाइंस, बेसिकली न्यूज हेडलाइंस या किसी चीज की भी हेडलाइन, वी ऑलवेज फॉलो विद द present indefinite. Let's just go with the example to clear these 4 points. These are the usage points and this is the rule, right? Make sure to note this rule. This is the important thing to understand. ये एक sequence में ही है, इसी से ही आपकी sentence formation होगी, ठीक है? Don't just shift the things. And next, this is all about the usage, right? Okay, let's move to the examples part. So as I told the routine objects, देखो अभी जो journal fact है, ठीक है, let's just take the first example. The heart pumps blood through the body. अभी जो heart है, ठीक है, वो ही pump करता है ना body में blood, ठीक है, तो pumps क्या है यहाँ पे, this is the verb, pump is the verb, right, verb first form, यहाँ पे heart क्या है, subject है, अभी यहाँ पे heart के साथ s लगा है, क्यों लगा है, ये थर्ड पर्सन चीज आएगी, हार्ट को हम इट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी, इट रेगुलेट्स द बॉडी, ठीक है, तो हार्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड एस हियर। लेट्स जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस, ओके, तो एज आई टोल्ड, देखो हार्ट क्या है यहाँ पे, द हार्ट इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा जनरल फैक्ट है जो चेंज नहीं कर सकते, रियलिटी है, ट्रूथ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हार्ट क्या है, सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, दिस इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है, ये थर्ड पर्सन में कैसे, अगर हम हार्ट की बात करेंगे, अब उसको रिपीट करते हैं तो इट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो इट के साथ हम क्या फॉलो करते हैं, एस, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, वर्ब फर्स्ट के साथ एस, राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट, वी ब्रश अवर टीथ डेली, ये हमारी रूटीन हैबिट में आ गया, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी तो फर्स्ट पर्सन में आ गया ना, वी, तो यहाँ पे वर्ब हमारी क्या रहेगी, सिंपल विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। नेक्स्ट, टीम इंडिया विंस बाय 5 विकेट, अभी टीम इंडिया है, ठीक है, उन्होंने टीम की बात की है, दिस इज अ वर्ब, अभी
टीम इंडिया की बात करो तो ना तो हम इसको इट कह सकते, सॉरी वी कह सकते हैं, ठीक है। टीम इंडिया की बात करें तो वो इट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने फॉलो किया है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स, राइट। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अभी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन, सन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इट में, तो इसके साथ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या फॉलो होगा, एस। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है, पहले उसकी यूजेज को समझो, देन गो टू द फॉर्मेशन, देन गो टू द रूल एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस वन, राइट। ओके, लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट पार्ट. This was all about the simple present tense or present indefinite tense, right? Let's just move to the present continuous. Now continuous में क्या है, देखो continuous को या तो हम कहते हैं प्रोग्रेसिव भी हम कह देते हैं, ठीक है। continuous itself says कि मैं continue प्रोग्रेस में हूँ, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। So present continuous, continuous itself says that I am in the flow, I am in the continue form, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा एक्शन हो रहा है, चल रहा है, जो चीज चल रही होती है, ठीक है, दैट कम्स अंडर द कंटिन्यूअस और द प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनदर नेम है सिंपल टेंस, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अनदर नेम क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, राइट। ओके, तो कंटिन्यूअस में देखो हमें किसी एक्शन की कंटिन्यूटी शो करनी है। अभी मैंने पहले बोला था दैट आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल। अभी मुझे अगर उसी को बताना है कि मैं अभी भी खेल रहा हूं, हाउ आई विल डिफाइन दैट आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो जहाँ पे आई एम प्लेइंग है ना, वो इसकी कंटिन्यूटी शो कर रही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। लेट्स जस्ट गो टू द रूल, देखो हाउ इट वर्क्स, पहले क्या आएगा, ऑलवेज सब्जेक्ट, everything is followed with the subject, without subject no sentence is completed, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस is MR प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस में हम यूजुअली फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, प्लस टू शो द कंटिन्यूटी we have used ing, it makes the difference, ठीक है। ing कंटिन्यूटी शो करती है और ये उसकी प्रेजेंस शो करती है, प्लूरल्स और सिंगुलर्स में, ठीक है। देन इट इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो अभी सब्जेक्ट की मान लो मैंने बोला था आई प्ले फुटबॉल इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, नाउ आई एम स्पीकिंग कि मैं अभी भी खेल रही हूँ, ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आई एम क्या है, आई में अपनी बात कर रही हूँ तो वी विल फॉलो विद एम, एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, राइट। सो नाउ बचे हमारे पास इज एंड आर। इज वी यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड आर वी यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट। इज किसके साथ फॉलो होगा, ही, शी, इट, ही इज, इट इज, शी इज, ठीक है। वी कैन नॉट यूज वी इज, दिस इज रॉन्ग, और आई इज, दिस इज रॉन्ग। आर किसके साथ यूज होगा, यू, वी, दे, ठीक है। वी ऑलवेज यूज आर विद यू, कभी भी यू के साथ, चाहे वो आप सिंगल पर्सन की बात करो, यू इटसेल्फ इज अ प्लूरल, वो प्लूरल्स में प्लूरल नहीं कह सकते, मींस इट इज जस्ट कलेक्टिव थिंग, राइट। तो नाउ द सब्जेक्ट के बेस पे ही ये वर्ब्स वर्क करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स, एंड देन इट विल बी फॉलोड विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। फुटबॉल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस वाज द रूल, हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। लेट्स जस्ट गो टू द यूजेज। अभी ये यूज कहाँ पे हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया ना, that action that is going on, अभी भी चल रहा है, so the action happening at the time of speaking which is not finished, जो action हमारे बोलने के टाइम पे भी हो रहा है, जो आप बता रहे हो ना, आपको कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड में क्या कर रहे हो, you will say I am playing football, ठीक है। so the action is going on at the time of your speaking, the action is happening, so the present continuous is used at the time when the action is happening on the time of speaking, ठीक है, and even it is not finished, first condition। सेकेंड, फॉर अ चेंजिंग और इवॉल्विंग सिचुएशन, जो चेंज हो रहा है, चल रही है ना कोई चीज, प्रोग्रेस में है, ठीक है, कुछ चीजों में चेंजेस आ रहे हैं जो कि ये अभी भी प्रोग्रेस में है उसमें। नेक्स्ट, ऑनगोइंग एक्शन विच इज नॉट नेसेसरी, कुछ ऐसे एक्शन जो चल रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी ये क्लियर नहीं एग्जाम्पल्स के बिना होगा, लेट्स जस्ट मूव टू द एग्जाम्पल्स। अभी मैंने रूल क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है, शी इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या फॉलो किया है, इज, राइट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों इकट्ठे नहीं लगाने हैं, इज विल फॉलोड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एम विद आई एंड आर विद द प्लूरल्स। नेक्स्ट, आई हैव यूज्ड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी वर्ब फर्स्ट फॉर्म मींस बेस फॉर्म एंड आईएनजी टू डिफाइन दैट एक्शन इज इन द कंटिन्यूटी,
राइट। तो कंप्लीटिंग, अगर मैं पहले बोलूं शी कंप्लीट्स हर नोटबुक, ठीक है, तो मैंने वो सिंपल टेंस में बात की है, शी कंप्लीट्स हर नोटबुक। बट उसके बाद अगर मैं फाइंड आउट किया कि मैंने देखा कि अभी भी उसकी नोटबुक पड़ी है, तो वो उसने फिर स्टार्ट कर दी कंप्लीट करनी, तो शी इज कंप्लीटिंग हर नोटबुक, ठीक है, शी इज स्टिल डूइंग, एंड उसका एक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ है, सो वो बता रही है, कोई बता रहा है, शी इज कंप्लीटिंग हर नोटबुक, राइट। सो हियर शी इज द सब्जेक्ट, this is the helping verb, and this is the base form plus ing. So this is how the continued action work, right? Okay, next आएगा pollution is causing global warming. अभी causing क्या आ रहा है यहाँ पे, is causing, ये क्या है, उसकी continuity show कर रहा है। So यहाँ पे condition क्या है, ये changing, और उसमें जो change आ रहा है, ठीक है, किसी चीज में हमने change में बात की थी ना, तो change क्या आ रहा है, pollution से global warming हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ना, वो प्रोग्रेस में है, वो चल रही है, ठीक है, अभी नहीं चल रही लेकिन कंटिन्यूटी में है, तो पोल्यूशन इज कॉजिंग। तो पोल्यूशन क्या है, इसको हम ना, मतलब हम इसको इट में डिफाइन करते हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द प्रोनाउंस ये इट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इज कॉजिंग, कॉजिंग अगेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दिस इज द एक्शन दैट इज शोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ द थिंग। पोल्यूशन इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट अभी थर्ड है, वी आर गोइंग टू मार्केट, we are going, we is the plural subject, तो we have, I have used are going to market। अभी ये जो एक्शन है ये हो रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, ये जो एक्शन हो रहा है ये फिनिश नहीं हुआ है कि हम जा रहे हैं, तो उनकी जाना क्या है, उनकी कंटिन्यूटी में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप दीज टू टेंसेस पार्ट आर क्लियर। फर्स्ट हमने किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेयर वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस एंड ई एस, एंड एस एंड ई एस हम कहां पे लगाते हैं, with the third person singular subjects। third person singular subject कौन से, he she it, right। next we have done the present continuous। continuous itself says that मैं एक continuity में हूँ, मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें we have defined with is mr plus verb first form plus ing, right। let's just move to next part of our this। okay, as we have done with the continuous, next part is present perfect tense। देखो हमने इसके बारे में पहले भी डिटेल में बात की है, परफेक्ट इटसेल्फ सेज कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो परफेक्ट में हमारे पास क्या आएगा, दैट द थिंग्स आर ऑलरेडी डन, ठीक है। तो बिफोर आई गो विद द यूजेज, लेट्स जस्ट गो विद द रूल। अभी इसका रूल क्या है, देखो परफेक्ट इटसेल्फ सेज कि मैं परफेक्ट हूं, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, तो इसमें हमारी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, या इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या समझना है, दैट इट इज ऑलवेज फॉलोड विद has, have plus verb third form। perfect tense, whether it is a present tense, whether it is a future or whether it is a past। जब बात perfect की आएगी ना स्टूडेंट्स, always remember it is followed with verb third form, ठीक है, always verb third form या उसका कह लो past participle, right। never ever forget this thing that perfect tense में ही हमारी थर्ड फॉर्म लगती है। अभी थर्ड फॉर्म को समझने के लिए you need to understand the degrees of verb, ठीक है, डिग्रीज ऑफ वर्ब, जैसे गो वेंट गोन, अभी गो क्या है फर्स्ट फॉर्म है, वेंट क्या है सेकंड, एंड गोन क्या है थर्ड। डू डिड डन, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, एंड डन इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ऐसे ही ये फॉलो होंगी। ओके, सो व्हाट इज द रूल, ऑलवेज सब्जेक्ट फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट हैज एंड हैव, तो हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर्स के लिए एंड हैव विद द प्लूरल्स एज वेल एज यू, ठीक है, एंड आई। सब्जेक्ट हैज अ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, it is always followed with verb third form and object, right। okay, so now let's go with the usage। इसकी examples के बाद में बात करेंगे, let's just go with the usage first। देखो present perfect tense we use where the action is just completed, जो शुरू हुआ था, ठीक है, बट अभी वो just complete हुआ है, अभी खत्म हुआ है। जैसे क्लास में हम मैम ने हमें कोई टास्क दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी हैज गिवन अस असाइनमेंट टू डू, तो आप बोलोगे मैम आई हैव डन माय असाइनमेंट, आपने जस्ट कंप्लीट किया ना, या आपका टेस्ट हो रहा है, मैम आई हैव डन, ठीक है। टीचर्स यूजुअली आस्क हैव यू डन स्टूडेंट्स और हैव यू कंप्लीटेड, तो योर आंसर इज आई हैव डन मैम, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड मैम, तो वो क्या है, आपका एक्शन जस्ट ऑन द मोमेंट कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट मोमेंट पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्शन जस्ट कंप्लीटेड वर्क। नेक्स्ट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, अभी एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, तो वही एक्शन थोड़ी टाइम पहले शुरू हुआ था, तो अभी कंटिन्यू हुआ है प्रेजेंट तक, ठीक है, वही चीज होगी ना कि आपने 20 मिनट्स पहले टेस्ट स्टार्ट किया था और अभी प्रेजेंट मोमेंट तक वो चल रहा था, राइट। नेक्स्ट एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द नियर फ्यूचर,
और कुछ ऐसे एक्शंस जो आने वाले थोड़े से टाइम में, ठीक है, 1 आधे घंटे में या 2-3 घंटों में कंप्लीट होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, एक्शन हैपेंड इन द पास्ट इन एन इनडेफिनिट टाइम। कुछ ऐसे एक्शंस जो हुए थे उनका कोई टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, बट हमने वो किए हैं एक्शंस, वो भी प्रेजेंट में परफेक्ट में आएंगे, क्योंकि ये देखो सारी चीजें घूम फिर के यही बता रहे हैं कि एक्शन हो गया है, ठीक है। परफेक्ट इटसेल्फ सेज कि एक्शन हो गया है, कैसे तैसे करके भी हो गया है, लेकिन वो हो गया है, राइट। लेट्स जस्ट गो विद द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स को समझने के लिए आपको ये रूल समझना जरूरी है, ठीक है। रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कैन बी आई, वी, यू, इट, ही, शी, राइट, दे। तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज जाएगा सिंगुलर्स के साथ, राइट, ही, शी, इट, एंड हैव जाएगा यू, आई, दे, राइट, एंड वी। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जरूरी है याद रखना कि इट इज ऑलवेज फॉलोड विद थर्ड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट जो उसका रेस्ट पार्ट है, ओके। लेट्स प्रोसीड विद द एग्जांपल्स, ओके। Let's proceed with the examples of the perfect tense. First example, I finished my work. देखो ये अभी complete हुआ है, I have, I क्या है यहाँ पे subject है, have मैंने क्यों use किया है, we cannot use I with has, it does not make sense, ठीक है। I have finished, अब इसकी बेस फॉर्म क्या है, finish, मैंने यूज किया finished, तो ये finish की क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। This is verb, थर्ड फॉर्म, my homework, this is the object, ठीक है। दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू यूज द वर्ब हैज एट। नेक्स्ट, फिनिश्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट, माय होमवर्क, तो ये एक टास्क क्या है, हो गया है। नेक्स्ट, आई हैव, अगेन आई हैव, यहाँ पे हम कर सकते हैं वी हैव, दे हैव, यहाँ पे हम रिप्लेस करके दे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, वो अभी भी रह रहे हैं, वो रहते थे, वो 5 सालों से रह रहे हैं और वो अभी भी रह रहे हैं। तो जो एक्शन है वो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और प्रेजेंट तक चल रहा है, ठीक है। they have lived in this city for 5 years, वो पिछले 5 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, we have seen the red fort, ये क्या है, the action that has been done in the past in an indefinite time, कि हमने देखा है रेड फोर्ट। we have seen, seen क्या है, see की थर्ड फॉर्म, ठीक है, see, saw, seen, right, have with the plural subject, we have seen the red fort, right. Next, he has submitted his assignment, उसने अपना टास्क कर दिया है, he has, अभी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, या फिर यहाँ पे किसी का नेम ले लेते हैं, रोहित has submitted his assignment, ठीक है, या फिर ममता has submitted her assignment, यहाँ पे his की जगह क्या हो जाएगा, her, ठीक है। when it comes to the girls we will use her, when it comes to the boys we will use his, ठीक है। तो he or she has submitted his or her assignment, तो the task is completed। तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव विद द वर्ब थर्ड फॉर्म। तो वर्ब थर्ड फॉर्म को समझने के लिए यू नीड टू गो विद द डिग्रीज ऑफ द वर्ब फर्स्ट, ठीक है, ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स, राइट, ओके। सो दिस वाज अबाउट अवर प्रेजेंट परफेक्ट। हमने 3 चीजें कर ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी इनको रिलेट करते हैं, एक्शन शुरू हुआ, चला, ठीक है, एक्शन चल रहा है और एक्शन हो गया है, 3 चीजें कर ली ना, यही होगा, या तो एक्शन चलेगा या चल रहा होगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ ली। पहले इंडेफिनिट में क्या था, आई राइट, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है, हैड पास में चला गया, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला, तो मैं खेल चुका हूं अभी, ठीक है, या फिर खेल रहा हूं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 3 पार्ट्स, ओके। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्या है, देखो हमने कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों अलग अलग कर लिए। नाउ लेट्स जस्ट कंबाइन दीज टू, दैट मेक्स अ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट और कंटिन्यूअस उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो परफेक्ट में हमारा क्या होता है, किसी तरह एक्शन खत्म हो जाता है, कंटिन्यूअस में कहीं ना कहीं एक्शन चल रहा होता है, ठीक है, या तो पास्ट से शुरू होकर चल रहा होता है, कैसे भी करके, ठीक है। बट इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमने एस्पेक्ट में पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि परफेक्ट मतलब एक्शन हो गया है, कंटिन्यूअस का चल रहा है। मैम इन दोनों को कैसे मैच करेंगे, देखो कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो शुरू हो गए हैं, वो कुछ पार्ट खत्म हो गया, कुछ चल रहा है, तो दिस इज हाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो प्रेजेंट की बात में आ रहे हैं, वो एक्शन शुरू हुआ था, ठीक है,
बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। वो शुरू हुआ था, वो खत्म, कुछ खत्म भी हो गया, कुछ चल भी रहा है, तो 50-50 है उसका, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका रूल क्या चलेगा, सब्जेक्ट, देखो हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की बात कर रहे हैं, राइट, तो परफेक्ट का भी कुछ रूल उठाएंगे और कुछ कंटिन्यूअस का पार्ट उठाएंगे, तो तभी ये बनेगा ना। और इन दोनों को कंबाइन करने वाला कौन है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, बिन। इन दोनों को कंबाइन करने वाला कौन है, बिन, ठीक है। तो ये कंबाइन कैसे होंगे, देखो परफेक्ट में वी हैव, ठीक है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। बट थर्ड फॉर्म क्या डिफाइन करती है कि एक्शन हो गया है, थर्ड फॉर्म डिफाइन करती है कि एक्शन इज डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तो बताना नहीं कि वो हो गया है, हमें ये भी बताना है कि वो चल रहा है। तो हमारी कंटिन्यूटी में क्या शो करता है, एक्शन की कंटिन्यूटी कौन शो करता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बनाएंगे इसका सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बिन, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस कंबाइन दीज टू थिंग्स, ठीक है। परफेक्ट और कंटिन्यूस को मिला के परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने वाला कौन है, बिन। तो इन दिस सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, एज इन द सेम, सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हैज, हैव, देन कंटिन्यूटी शो करने के लिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड इट विल बी कंबाइंड विद द बिन, कि उसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला था आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, बट मैं बोलूं मेरी असाइनमेंट अभी थोड़ी सी रह गई, तो मैं उसके बाद बोलूंगी आई हैव बिन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट अभी भी मेरी चल रही है उसमें, ठीक है, कुछ हो गई कुछ भी चल रही है, आई हैव बिन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट, राइट। तो उसमें वो क्या शो कर रहा है, दैट माय असाइनमेंट 50 और 60% ऑफ द पार्ट इज कंप्लीटेड एंड रेस्ट पार्ट इज स्टिल ऑन द प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यूजेज क्या आएगी, एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, वही चीज जो पहले पास्ट में शुरू हुआ था एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड, कुछ ऐसे एक्शंस, देखो यहाँ पे ये पास्ट एक्शन है ना जो एकदम से रुक गए, सेम थिंग, राइट। इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल एंड द यूजेज, राइट। लेट्स जस्ट मूव टू द एग्जांपल्स। अभी इसके एग्जांपल्स में क्या है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, देखो ये एक्शन है, आई हैव बीन रीडिंग, पहले इतना समझते हैं, आई हैव बीन रीडिंग, हैव बीन क्या है इसकी क्वालिटी, वो बता रहा है एक्शन होने की, हैव इसकी परफेक्ट बता रहा है, बिन इसको कंबाइन कर रीडिंग उसका एक्शन, ठीक है, कि क्या कर रहा है, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं 2 घंटों से, इट मींस कि मैंने कुछ पढ़ लिया, कुछ अभी मेरा पेंडिंग है, ठीक है। तो एक्शन अभी कंटिन्यूटी में है अभी और वो हो भी चुका है, राइट। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड नाउ, अभी मैं टाइम ना, आई एम टायर्ड, अभी नाउ मोमेंट शो कर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं थक गया हूं क्योंकि मैं भाग रहा था और मैं अभी भी भाग रहा हूं, ठीक है, अगेन वो चीज। या फिर आई फील टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग सिंस 2 hours, सिंस 4 hours, सिंस कैसे भी, ठीक है। सो इन द सेम मैनर। नेक्स्ट, दे हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर, वो आपको कॉन्टेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो वो कंटिन्यूटी में थे कि कर भी रहे थे, अभी कर भी रहे हैं, और वो एकदम से स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है, कि कर रहे थे, आपको मान लो आप उनको मिल गए, तो वो बता रहे हैं दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू और हर, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूजेज, राइट। वो कैसे चलेंगे आप पे डिपेंड है। हमने 4 पार्ट्स कवर किए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑल दीज आर रिलेटेड। अभी अगर ये समझ आ गया है, नेक्स्ट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज देयर आर लिटिल मॉडिफिकेशंस, देयर इज नॉट दैट मच मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हैं जो आपको समझने हैं, rest part is same. So this was all about the present continuous tense. Let's just recall all the things at one place. Okay, तो हमारा लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अ रिकॉलिंग पार्ट दैट वी हैव डन, ठीक है। अभी हमने क्या किया, पहले प्रेजेंट सिंपल, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आई लाइक इट, आई लाइक इट, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या वर्ब यूज किया, लाइक। यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, अभी यहाँ पे क्या यू है, तो हमें सिंगुलर उसको प्रेजेंट सिंपल में डिफाइन कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं शो हो रही, यहाँ पे कोई एक्शन कंप्लीशन नहीं शो हो रही, जस्ट हम यूज कर रहे हैं आर, तो आर भी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, इट्स द हेल्पिंग वर्ब कह लो या इट इज वर्किंग एज द मेन वर्ब, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मैरी वॉन्ट्स टू बी हर विद, मैरी वॉन्ट्स टू बी हेयर विद मी। अभी मैरी क्या एक नेम है, मैरी इज अ नेम हियर,
अगर हम इसको प्रोनाउन में कर देंगे इट विल बिकम शी, ठीक है। तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। सो इन द सेम मैनर मैरी वांट्स टू बी हियर विद मी, राइट। तो ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट इन द पास्ट, दिस इज नॉट इन द फ्यूचर। लेट्स मूव टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो ये रिलेटेड है, ये यहाँ से जाएगा फिर यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे हम यूज करते हैं ना, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। किसी चीज की होने की उसकी वो बता रहे हैं कि वो चल रहा है, राइट। आई एम वॉशिंग द डिशेस, मैं बर्तन धो रहा हूं, ठीक है। आई एम, ही इज नॉट स्टडिंग वेरी वेल, वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग। तो स्टडिंग उसका एक्शन कंटिन्यूटी शो कर रही है एंड इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म, आर यू लिसनिंग टू द म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है। आर यू, तो उसके क्वेश्चन फॉर्म में वो बात कर रहे हैं, राइट। दिस वाज आल्सो इन द प्रेजेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखो यहां से चल के हमने यहाँ पे स्टॉप किया, यहाँ पे हमारा एक्शन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक्शन कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं चल रहा कि एक्शन की क्या फ्लो है, क्या सिचुएशन है। इसकी आपकी फॉर्मेशन को समझो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्शन का प्रेजेंट में है लेकिन वी डू नॉट नो कि उसकी कंटिन्यूटी में है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है। यहाँ पे वो चल रहा है, ये उसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि वो एक्शन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से चल रहा था यहाँ पे आके खत्म हो गया है, ठीक है। इट मींस इट्स परफेक्ट, कि वो खत्म है। तो परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, इसके बिना आपके टेंसेस गलत है, ठीक है। तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। शी हैज नॉट बीन टू लंदन। अभी मैम बोलोगी मैम यहाँ पे आपने बिन क्यों लगा दिया, बेटा यहाँ पे उसकी प्रेजेंट शो कर रहा है, बी का थर्ड फॉर्म है वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो इसके बिन वाला यूज नहीं है, उसका है कि वो लंदन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हैज शी एवर रिडन द हॉर्स, क्या कभी उसने घुड़सवारी की है, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्म में है, ये नेगेटिव सेंटेंस में है, क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। तो हैव शी एवर रिडन, रिडन राइड की थर्ड फॉर्म, राइट। सो दिस इज हियर एक्शन इज फिनिश्ड। तो इनका कहने का ये मतलब है कि एक्शन खत्म हो चुका है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन यहाँ पे हमारा एक्शन खत्म है, बट इसके बाद हमें याद आया कि हमारा एक्शन कुछ अभी पड़ा है, कुछ खत्म हो गया कुछ पड़ा है, तो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूटी में चल रहा था एंड इट फिनिश्ड, तो इट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वहां पे वो यूज हैज एंड हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। I have been doing my homework for 4-6 hours. मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ 6 घंटों से, ठीक है। I have not been doing, मैं नहीं कर रहा हूँ। Have I been doing, क्या मैं कर रहा हूँ। So the same sentences go with the flow. Okay dear students, so this was all about the tenses that we have done. I hope this is clear to you and I tried my best to make you understand, to clear your all doubts. Thank you so much for watching this video. Do not forget to practice. Practice is the only thing that makes you perfect in everything, right? Do understand the things, note down the things that are going on side by side. Do watch the previous video as well to understand this one, and I will come back again with another video and another new topics of your English to help you in every way. Thank you so much. Till the time, take care, stay safe and do your work. Thank you so much.